اسی عرص کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دیں۔ اور بلڈ آف جیزس ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لوگ سوال پوچھتے ہیں، اور آج ایک مرتبہ پھر سے ہمارے مہمان ہیں پادری سرفراز صاحب۔ جی پادری صاحب، ہم آپ کو پروگرام لوگ سوال پوچھتے ہیں میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی گاڈ بلیس یو۔ اور بڑی خوشی ہوئی پادری صاحب آپ کو دوبارہ یہاں پر مدعو کیا اور آپ نے وقت نکالا تاکہ خدا کے کلام کے جو یونیک وید ہیں ان کو کھولا جا سکے اور ہر ایک کو اس سے روح شناس کرایا جا سکے۔ تو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں، اور ایک سوال بہت بڑا سوال ہے جو اکثر کلیسیا میں اور خدا کے خدام بھی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور اس پر بڑی چرچا ہوتی ہے، اور یہ سوال یہ ہے روح القدس کے تعلق سے جی کہ روح القدس کے جو کیونکہ پانی کے جو بپتسمہ کا وہ تجربہ کافی زیادہ لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور روح القدس کا جو بپتسمہ ہے یہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کی کیونکہ کلیئر ہی نہیں کیا جاتا اور واضح طور پر اس پر ڈسکس نہیں کی جاتی، ہمیں اس زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں تعلیم نہیں دی جاتی۔ تو آج ہم آپ سے یہ پوچھیں گے سوال کہ یہ روح القدس کا جو بپتسمہ ہے یہ کیا ہے؟ جی شکریہ، آپ نے یہ سوال کیا، اور میں چھوٹا سا خادم ہوتے ہوئے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بپتسمہ ہے کیا؟ جس طرح ہم پانی کے بپتسمے کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے کہ پانی کے اندر غوطہ لگانا، ڈبکی لگانا، اس کے اندر مل جانا، تو یہ بپتسمے کا جو ہے وہ میننگ ہے۔ جب روحانی طور پر ہم بات کریں گے، روح القدس کی بات کریں گے، تو پھر روح میں جب ہم لگ جاتے ہیں، روح میں مل جاتے ہیں، تو پھر اس کو روح القدس کا بپتسمہ کہیں گے۔ اس کی ایک اور میں مثال دوں گا کہ جب تک ہم روح میں نہیں لگتے، اس کے اندر نہیں ڈپ ہوتے، اس میں مرج نہیں ہوتے، اس میں رنگ نہیں جاتے، یا اس میں کنورٹ نہیں ہو جاتے، اس میں مکس نہیں ہو جاتے، یعنی سارے بپتسمے سے ہی تعلق ہے ان کا۔ یعنی بپتسمہ یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے اندر لگ جاتے ہیں، پیوست ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کہہ کے ڈوب جاتے ہیں، وہ بپتسمہ کہلاتا ہے۔ اور جب تک روح القدس کا یہ ہے کہ جب تک ہم اس کے روح کے اندر نہیں چلے جاتے یا روح ہمارے اندر نہیں آ جاتا، تب تک روح القدس کا اچھا یہ دو پروسیس ہیں نہیں ہے۔ یا روح کے اندر ہم چلے جاتے ہیں یا روح ہمارے اندر آتا ہے؟ جی بات تو ایک ہی ہے کہ ہم روح میں لگ جائیں، یعنی کسی بھی طریقے سے ہم روح کے ساتھ ایسے اٹیچ ہو جائیں، مرج ہو جائیں، مکس ہو جائیں اس کے ساتھ، تو وہ روح القدس کا بپتسمہ کہلائے گا۔ اچھا بھائی صاحب، یہاں پر ایک اور بڑا خوبصورت سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ اس میں جب ہم مرج ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں، پیوستہ ہو جاتے ہیں، تو وہی بپتسمے کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ جی بالکل اصل۔ اچھا، تو روح القدس کا اکثر جو تعلق بیان کیا جاتا ہے، اکثر کہتے ہیں کہ جو غیر زبانیں ہیں ان کے بغیر جو روح القدس کا بپتسمہ نہیں اس کو تسلیم کیا جاتا، تو کیا واقعی ہی غیر زبانوں کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے یا اس کے بغیر بھی روح القدس کا بپتسمہ ہو سکتا ہے؟ چلیے اس کو تو ہم بائبل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اس میں ہے سچائی کیا ہے۔ دیکھیں، کیونکہ کلام میں خدا جو ہے وہ ہماری بہتر طور پر رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ جب کلام مقدس میں سے حوالہ نکلتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں ہی تو یوں مرقوم ہے کہ تمہارا کلام ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے، اور اس غیر زبانوں کے تعلق سے جو ہمیں مناسب جواب ہے وہ خدا کے کلام کی رہنمائی لے کر ہم آپ سے ضرور حاصل کریں گے۔ میں صرف چھوٹی سی مثال پہلے لینا چاہتا ہوں کہ جب ایک گلاس ہم بھرتے ہیں جگ سے، پہلے بھرا جاتا ہے یا وہ پہلے چھلکنا شروع ہوتا ہے؟
डेफिनेटली पहले भरा ही जाएगा तो फिर हाँ। छलकेगा। हमारी आइज से जब आंसू छलकना शुरू होते हैं तो पहले आइज भरती हैं या पहले आंसू छलकना शुरू होते हैं? डेफिनेटली पहले आइज भरेंगी तो वो बाहर निकलेगा। इसका मतलब है कि कुछ पहले होता है तो उसके बाद वो लबरेज होना शुरू, भर के बहना शुरू होता है। जिस तरह 23 ज़बूर में भी लिखा है कि प्याला लबरेज होता है, हाँ जी। यानी लबालब भर जाता है तो फिर बाहर निकलता है। हाँ जी, तो आइए इसको इमाल 2 बाब की रोशनी में ही, क्योंकि उसी दिन रूह कुद्स जो है वो नाज़िल हुआ, तो उसी में से हम देखने की कोशिश करते हैं। रूहुल कुद्स के ताल्लुक से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि खुदा का रूह जो है इसकी हमें बेहद ज़रूरत है। चल मैं सिर्फ आप इन्हीं हवालों पर ज़रा गौर कीजिएगा और मैं व्यूवर से भी कहूँगा काइंडली गौर से ज़रा सुनिएगा और बाद में बाइबल खोलकर उसको ज़रूर पढ़िएगा और इस पर ध्यान और ज्ञान कीजिएगा ताकि हम असल हकीकत तक पहुँच जाएं। इमाल की किताब उसका 2 बाब और चल 2 आयत से ही मैं इसको पढ़ूंगा। लिखा है कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सुन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और इस आयत पर ज़रा गौर कीजिएगा। उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी। बड़ी खूबसूरत बात है कि ज़ुबानें दिखाई दे रही, जबकि ज़ुबानों का अक्सर जिक्र सुनने में आता है कि सुनते हैं हम ये ज़ुबान, दिखाई नहीं देती और ये आवाज़ें दिखाई दे रही। हाँ जी, यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़े से वक्त में थोड़ी सी ही बात होगी और शायद आपके एक ही सवाल का जवाब शायद मैं दे पाऊँ क्योंकि जितना आपका टाइम है। हाँ जी, बात यह है कि क्या हुआ है कि आसमान से उनको आग आती हुई दिखाई दी है। रूहुल कुद्स आग की सूरत में उनको उतरते हुए, नाज़िल होते हुए, आते हुए दिखाई दे रहा है। और जब वो दिखाई दे रहा है इसमें उनकी आइज के अंदर कुछ हो रहा है। उनकी रूहानी आंखें जो हैं वो खोली गई हैं। आप आज मुझे कोई बता दे कि आसमान से आग आती किसी को नजर आती है, लेकिन आज भी जिनकी खुदा ने रूहानी आंखें खोली हैं, जब हम दुआ करते हैं तो वो बताते हैं कि भाई साहब हमें आसमान से आग आती हुई, नाज़िल होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि उनकी रूहानी आंखें पहले खोली गई हैं। और जिस तरह से पतरस जो है 11 के साथ उठ खड़ा होता है और क्या कहता है, आइए इस पर जरा बात करते हैं। क्या कहता है? लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से कहा। क्या कहा? आइए इसकी आखिरी आयत पे चले जाते हैं, 16वीं आयत पे चले जाते हैं। वो कहता है कि बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई कि खुदा फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी और तुम्हारे जवान रोया और बुढ़े ख्वाब देखेंगे। और इसका तल्लक ऊपर वाली आयत से ही है। आप मुझे ये ऊपर वाली 14-15 आयत के अंदर कहीं भी इसको साबित करके बताएं इस बात को, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किए इसलिए पहले ही मैं उसको खोलता हूं कि यहां पर रोया की बरकत ही तो है कि इस आलम से उस आलम के अंदर, उस रूहानी आलम के अंदर लोग देखना शुरू होते हैं। उनको उस आलम की चीजें यानी रूह कुद्दस आसमान से आता हुआ दिखाई देना शुरू हुआ है। इट्स मीन कि उनकी रूहानी आंखें खुली हैं और यही रूह कुद्दस का बपतिस्मा है। जब इस आलम के चीजों के अलावा दूसरा आलम आप पर खुल जाए, जब रूहानी आलम आप पर खुल जाए, जब आप रूहानी आलम के अंदर चले जाएं, जब आप रूहानी आलम के अंदर मिक्स हो जाएं, उसकी चीज़ें देखना शुरू हों, आप उसकी ग्लोरी को देखना शुरू हों, तो यही तो रूह कुद्दस का बपतिस्मा है। जी पातशाह, बहुत खूबसूरत बातें की कि रूहुल कुद्स
کا बपतिस्मा है क्या, क्योंकि जब हम इसको जान लेते हैं तो फिर बाकी चीज़ें भी समझने में हमें बड़ी आसानी होती है। अच्छा, तो फिर ये जो गैर ज़ुबानों का जो ताल्लुक़ बताया जाता है कि गैर ज़ुबानें ही जो है वो रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है, तो क्या ये वाकई गैर ज़ुबानें का ताल्लुक़ है या नहीं? तो फिर ये गैर ज़ुबानों का जिक्र क्यों होता है? आइए इसी क्यों इसको साथ अटैच किया जाता है? गैर ज़ुबानों को क्यों अटैच किया जाता है? अगली आयत के अंदर इसका जवाब आपको मिल जाता है। पहली बात दोबारा से मैं वो पढ़ूंगा कि लिखा है कि उनको ज़बानें दिखाई दी और हर एक के ऊपर आके ठहर गई। और अगली आयत के अंदर लिखा है और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। इसका मतलब है जब रूहानी आलम खुल गया है, जब रूहानी आलम के अंदर वो चले गए हैं, उसको देखना शुरू हो गए हैं, उन ऊपर से आग उनको दिखाई देना शुरू हो गई है, तो वो रूहुल कुद्दस से भर गए हैं। जो मैंने पहले मिसाल दी कि गिलास भर गया है। अब अगर वो पानी बहना शुरू हुआ है तो वो क्या है? अब उसकी इज़हार है कि इसके अंदर पानी भरा गया है, यानी कि वो जब छलकता है, जी छलकता है, जो लबालब भरा जाए तो फिर वो छलकता है। अब रूहुल कुद्दस से तो वो भर गए हैं, क्योंकि रोया की बरकत से उन्होंने जब देखा है, जो पतरस भी कहता है, योएल नबी भी कहता है कि वो रोया देखेंगे, तो ये रोया उन पर जाहिर हुई, उन्होंने देखा, वो रूहानी आलम के अंदर चले गए और लिखा है वो रूहुल कुद्दस से भर गए। अब फिर गैर ज़बानें क्या हैं? वो मैनिफेस्टेशन है, यानी छलकना है, आइज़ भर गई हैं। अब पता चल रहा है कि आंसू निकलना शुरू हो गए। गैर ज़बानें जो हैं वो उसका इज़हार हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं कि अब रूहुल कुद्दस से भर गया है। और लिखा है कि जैसे रूह ने उनको ताकत बख्शी, वो बोलना शुरू हो गए। अच्छा, फिर ये जितनी भी नेमतें हैं ये उसका फिर इजहार है? जी, इजहार है। सारी नेमतें जो है ये रूहुल कुद्स से भर जाने का और उसके बपतिस्मा का तजुर्बा करने का ये इजहार होता है। जी, बड़ी खूबसूरत बातें की और बड़े प्यारे जवाबात दिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो देखने के लिए ब्लड ऑफ जीसस टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफीद हो सकें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।